Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 64. Children, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 64 as I'll be continuing with lesson 7, The Clever Crab. Students, in my last video, I had read the lesson to you and explained page number 64. Now today, I'm going to read the lesson for you, revise the word meanings, and then I'm going to continue explaining the rest of the lessons. And children, as I read, please pay attention. First of all, children, I'm going to revise the word meaning of lesson 7. So please listen to me carefully. Children, the first new word is downfall. And downfall means destruction. कोई भी चीज जो पूरी तरह से बेटा डिस्ट्रक्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाउनफॉल. दैट इज डिस्ट्रक्शन. पूरी तरह से खत्म हो जाना. Downfall, destruction. The second word is worried. Worried means disturbed or troubled. बहुत परेशान होना. Disturbed or troubled. Worried, disturbed or troubled. Third new word is witty. And witty means clever. Witty means clever. Fourth word is trust. And trust means to have faith, to believe in someone. किसी पे बेटा विश्वास होना, किसी पे पूरी तरह से विश्वास करने को क्या बोलते हैं? ट्रस्ट. We all trust our parents, isn't it? We all trust our parents. We all trust God. Then the fifth word is spotted. Spotted means notice, to see. कुछ notice करना, कुछ देखना, उसको बोलते हैं spotted. Then the sixth word is scattered. Scattered means distributed randomly. Distributed randomly का मतलब बेटा spread over a big area. बड़े से एरिया में पूरा फैला होना, उसको बोलते हैं scattered. हिंदी में जिसको बोलते हैं ना फैला हुआ या छितरा हुआ, उसको बोलते हैं scattered. Then the seventh word is pincers. And pincers I had explained. ये जो क्रैब है, इसके जो आगे के ये जो दोनों क्या बोलते हैं, ये जो ऐसे क्लॉज टाइप हैं, ये इसके पिंसर्स है. क्रैब के ये क्या है बेटा? पिंसर्स है. फाइन. नाउ देन eighth word is repaid. And repaid means to return, लौटा देना. Repaid, to return. Then the ninth word is suffer. And suffer means to go through an unpleasant experience. कुछ बहुत बुरा, जिसको अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, वैसा कुछ एक्सपीरियंस करने को बोलेंगे unpleasant, which is not pleasant. One is not happy to experience. Then the 10th word is cruel. And cruel means unkind, जिसको बिल्कुल भी दया ना हो, who is not at all kind. Cruel, unkind. And the 11th word is tale. T-L-E, tale. Tale का मतलब होता है बेटा स्टोरी. वो T-A-I-L, tale पूछ नहीं. This is story. So I hope the word meanings, children, are clear to you. Now children, I'm going to read the lesson, The Clever Crab, for you. First I'm going to read. You please pay attention and move your fingers as I read, and then I'll be explaining this lesson to you, children. Lesson 7, The Clever Crab. Once upon a time, there lived a stork near a big pond. The stork would catch fish from the pond for food.
As time went by, the stork grew old and could no longer catch fish. He grew very thin and weak. One day, he got an idea and started crying by the pond. Fish, why are you crying? Stop. I have come to say goodbye, my friends. I am moving elsewhere. Fish, why? What is the matter? Stork, my friends have just told me that this year there will be no rains and this pond will soon dry up. Fish, together, what will happen to us then? We will die without water. Stork, that is what has upset me. You are my friends, and I am sorry that I might lose you. But I need to fly to the other pond across the hills. Fish, go if you must, our friend, but do think of a way to save us. Stork, I have an idea, but will you take a chance? Fish, do tell us your idea. Stork, well, you need to trust me. Fish, we do. Tell us your plan. Stork, I could carry each one of you one by one across the hill to the other pond. The fish were a little worried. They knew that the stork could eat them, but they wanted to save their lives. Therefore, they agreed. There was also a witty crab who lived in the pond, but he did not trust the stork. Crab, listen, fish, the stork may not be telling the truth. Let us stay here and see whether the pond actually starts drying up. Fish, we do not wish to die. The stork is trying to help us. If you do not wish to come, you can stay here alone. The next day onwards, the stork began to carry the fish across the mountain. Soon, the pond was empty of all the fish. Stork, to the crab, your friends are all waiting on the other side, and today I too shall leave this place. Do let me take you across to the other pond. The crab did not trust the stork, but seeing no other way out, he agreed. Okay, but do be careful, said the crab. While they were flying, the crab spotted fish bones scattered all over the hill. He soon realized that the greedy stork had killed all his friends. He quickly dug his pincers into the stork's neck and did not let go till the stork started bleeding. Crab, so this is how you repaid the trust my friends placed in you. Now you too shall suffer. The cruel stork died, and the witty crab lived to tell this tale to others. And students, this story has been adapted from the Panchtantra. और आपको पता है पंचतंत्र बेटा बहुत पुरानी इंडियन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, एंड दीज आर मेनली स्टोरीज अबाउट एनिमल्स. और हर एक स्टोरी में बेटा एक मॉरल होता है जिससे हमको कुछ सीखने को मिलता है. फाइन. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लेसन चिल्ड्रन, द क्लेवर crab.
आई होप एवरीबडी नोज कि बेटा बहुत ज्यादा लालच करना बुरी बात है। एंड इसी स्टोरी में हमको पता चलता है कि जो स्टॉक था, है ना, ओल्ड स्टॉक, वो बहुत ग्रीडी था और उसकी ग्रीड के कारण उसका डाउनफॉल हो गया। डाउनफॉल मतलब फाइनली उसका अंत हो गया। व्हाई? बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, है ना, उसने लालच की एंड इन द एंड ही died just because of his greed. So, once upon a time, there lived a stork near a big pond. The stork would catch fish from the pond for food. So, children, एक बहुत पहले एक स्टॉक था। आपको स्टॉक पता है ना, बगला। वो एक बड़े से पॉन्ड के पास रहता था और वो किसको खाता था? फिश को। पॉन्ड में से फिश पकड़ के स्टॉक क्या करता था? खा जाता था स्टॉक। पॉन्ड से फिश को पकड़ के खाता था। स्टॉक का फूड क्या था बेटा? फिश। स्टॉक का फूड क्या था? फिश। स्टॉक किसको खाता था बेटा? फिश को खा जाता था फॉर फूड। नाउ as time went by, the stork grew old and could no longer catch fish. अब बेटा बहुत टाइम हो गया, धीरे 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 जो स्टॉक है वो ओल्ड हो गया। स्टॉक कैसा हो गया बेटा? ओल्ड। बहुत ओल्ड हो गया। और जब ओल्ड हो जाते हैं तो ऑल ऑफ अस नो दैट बहुत एनर्जी नहीं बचती है ना, ज्यादा एनर्जी नहीं रहती है, स्ट्रेंथ नहीं रहती है, पावर खत्म हो जाता है। तो स्टॉक जो है अब फिश नहीं पकड़ पा रहा था, पॉन्ड में से फिश नहीं पकड़ पा रहा था। अब जब वो फिश नहीं खा पा रहा था, सो व्हाट हैपेंड? द स्टॉक ही ग्रू वेरी थिन एंड वीक। हमारा जो स्टॉक था वो जो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल था यंग में, अब वो ओल्ड होके एकदम थिन और वीक, एकदम वीक और थिन हो गया था। कौन बेटा? स्टॉक। देन वन डे ही गॉट एन आइडिया। स्टॉक को एक दिन एक आइडिया आया एंड व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग? He started crying by the pond. स्टॉक जो है पॉन्ड के साइड में बैठ के आइडिया उसको आया कि मुझे तो कुछ करना है, बिकॉज आई एम गेटिंग थिन एंड वीक। मैं तो फिश को पकड़ ही नहीं पा रहा। तो उसको एक आइडिया आया। What he did? He started crying by the pond. वो पॉन्ड के किनारे बैठ के जोर जोर से he started crying. Now the stork was crying. जोर जोर से जो स्टॉक है रोने लग गया। वो सब आइडिया के अंडर में ही वॉज डूइंग दैट। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो ही इज क्राइंग। स्टॉक वॉज क्राइंग। फिश, व्हाई आर यू क्राइंग? तब जो फिश थी बेटा वो आई स्टॉक से पूछने। व्हेन द फिश सॉ दैट द स्टॉक वॉज क्राइंग, सो द फिश केम टू आस्क द स्टॉक, Why are you crying? Stork, तुम क्यों रो रहे हो? Why are you crying? What did the stork say? Stork said, I have come to say goodbye. Stork ने फिश को क्या बोला? I have come to say goodbye, my friends. I am moving elsewhere. Stork ने बोला कि मैं इसलिए रो रहा हूँ बिकॉज मैं आपको क्या करने आया हूँ? गुड बाय करने आया हूँ। बिकॉज आई एम मूविंग elsewhere, मैं कहीं और जा रहा हूं। तो फिश ने पूछा, why? What is the matter? आप ऐसा क्या हुआ कि that you have to go leave this pond, go somewhere else? Stop. What did the stork reply to the fish? अब देखो स्टॉक ने क्या बोला। Stork said, my friends have just told me that this year there will be no rains and this pond will soon dry up. स्टॉक ने बोला कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बताया है कि इस साल बिल्कुल भी अब रेन्स, बारिश नहीं होगी एंड ये जो पॉन्ड है ये पूरा क्या हो जाएगा? ड्राई अप हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा। और बेटा जब पानी सूखेगा तो उसमें कोई फिश और क्रैब कोई बचेगा नहीं। तो ऑल दिस वाज द आइडिया ऑफ द स्टॉक। स्टॉक का ये आइडिया था। नाउ द फिश
दे फिश टुगेदर, बहुत सारी फिश, टुगेदर मतलब साथ में। अब नाउ टुगेदर बहुत सारी फिश आई और उन्होंने सबने किससे पूछा? स्टॉक से पूछा। What will happen to us then? We will die without water. Everyone knows कि फिश कहाँ रहती है? फिश तो वाटर में ही रहती है, और अगर वाटर नहीं होगा तो फिश क्या होगी? फिश तो मर जाएगी। तो फिश ने क्या पूछा स्टॉक से? What will happen to us then? हमारा क्या होगा अगर रेन्स नहीं होगी, पॉन्ड पूरा ड्राई हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन टू अस? वी विल डाई विदाउट वाटर। फिश ने क्या बोला कि विदाउट वाटर दे विल डाई। फिश तो क्या हो जाएगी बेटा? फिश विल डाई विदाउट वाटर। फिश ने किससे पूछा? स्टॉक से। That when the stock was crying and saying that I'm moving elsewhere, my friends had told me कि इस साल this year there will be no rains and pond पूरा dry हो जाएगा, इसलिए I'm going somewhere else। तब बेटा फिश ने क्या बोला? If there will be no water, हमारा क्या होगा? We will die without water because fish तो पानी के बिना रह ही नहीं सकती। All of us know that। Now what did the stock say then? Stock, that is what has upset me। तो स्टॉक बहुत कनिंग था, उसने बोला इसीलिए तो मैं अपसेट हूं, इसीलिए तो मैं क्या कर रहा हूं? रो रहा हूं। यू आर माई फ्रेंड। स्टॉक्स ने किसको बेटा बेवकूफ बनाने की कोशिश की? फिश को। क्या बोला? यू आर माई फ्रेंड्स, जबकि फिश तो उसकी फ्रेंड थी नहीं, वो तो फिश को फूड के जैसे खाता था। एंड आई एम सॉरी दैट आई माइट लूज यू। स्टॉक ने बोला कि मुझे इसीलिए बुरा लग रहा है कि तुम सब भी मर जाओगे, बिकॉज रेन्स तो होंगी नहीं और पॉन्ड पूरा ड्राई हो जाएगा। सो बट मैं तो अपनी जान बचा के जा रहा हूं। हु सेड दैट? द cunning and cruel stock. He said that but I need to fly to the other pond across the hills। उसने बोला कि अभी ये जो पॉन्ड के अक्रॉस उस पार, हिल के उस पार भी एक पॉन्ड है, मैं तो वहां फ्लाई करके आई एम गोइंग अक्रॉस द हिल्स टू द अदर पॉन्ड। अदर पॉन्ड जो दूसरा पॉन्ड है, अक्रॉस द हिल, जहां वो पॉन्ड था उसके पास में हिल्स थे और हिल के अक्रॉस दूसरा पॉन्ड था। सो दी स्टॉक टोल्ड द फिश दैट ही इज फ्लाइंग एंड इज फीलिंग बैड फॉर द फिश। कि वो उसके फ्रेंड्स हैं और वो सब उनको छोड़ के उसको जाना पड़ रहा है। देन लेट्स सी व्हाट डज द फिश से। फिश, गो इफ यू मस्ट अ फ्रेंड बट डू थिंक ऑफ अ वे टू सेव अस। तो फिश ने स्टॉक से बोला गो, अब तुमको जाना है फ्रेंड। फिश तो बेचारी इनोसेंट थी, सीधी सादी थी, वो तो स्टॉक की बातों में आ गई। तो दे सेड गो इफ यू मस्ट, अगर तुमको लगता है कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, बट डू थिंक ऑफ अ वे टू सेव अस। बट कोई वे ढूंढो, किसको बचाने का? हमको बचाने का। फिश तो जो आइडिया था स्टॉक का वो तो एकदम उसमें वो सक्सेसफुल हो गया। फिश तो उसकी बातों में आ गई। फिश ने बोला कि तुम हमको बचाने के लिए कोई रास्ता सोचो, बिकॉज तुम तो फ्लाई करके चले जाओगे बट हम तो यहाँ रह जाएंगे और अगर रेन्स नहीं हुई तो हम मर जाएंगे। सो डू थिंक ऑफ अ वे, कोई रास्ता सोचो जिससे कि हम सब फिश बच जाएं। स्टॉक, आई हैव एन आइडिया बट विल यू टेक अ चांस। स्टॉक ने बोला मेरे पास तो आइडिया है बट क्या तुम सब चांस लोगे? स्टॉक का तो आइडिया था ही, उसको तो सारी फिश को पकड़ना था। तो उसने बोला यस आई हैव अ आइडिया बट विल यू टेक अ चांस। क्या तुम लोग चांस लोगे? तुम लोग मेरी बात सुनोगे? फिश, डू टेल अस योर आइडिया। फिश ने बोला कि हमें पहले अपना आइडिया तो बताओ, देन ओनली वी कैन टेक अ चांस। द स्टॉक, वेल यू नीड टू ट्रस्ट मी। स्टॉक ने क्या बोला कि तुम सबको मुझ पे क्या करना पड़ेगा? ट्रस्ट करना पड़ेगा। और अब सोचो कि स्टॉक ही फिश का खाता है, फिश तो स्टॉक का फूड है
और क्या फिश को स्टॉक पे ट्रस्ट करना चाहिए? बट फिश तो बहुत इनोसेंट, सीधी सादी। तो स्टॉक ने उनको फिर फुलिश बनाने की कोशिश की और बोला, वेल यू नीड टू ट्रस्ट मी, तुम लोगों को मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्या फिश को स्टॉक पे ट्रस्ट करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? क्या स्टॉक सच में फिश की हेल्प कर रहा था? डू यू थिंक द स्टॉक वाज रियली हेल्पिंग द फिश, or was he planning something else? Fish, we do, tell us your plan. तो फिश ने बोला, नहीं नहीं, हम तो तुमको पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं। फिश को स्टॉक ने डरा दिया था कि रेंज तो होंगी नहीं और पूरा पॉन्ड जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो फिश ने बोला, नो नो, वी डू ट्रस्ट यू। फिश ने बोला, हम तो तुमको बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं, हमको अपना प्लान बताओ। स्टॉक, आई कुड कैरी each one of you one by one across the hill to the other pond. स्टॉक तो बहुत कनिंग था। उसने क्या बोला कि मैं तुम लोगों को रोज एक एक करके अपने जो बीक है उसमें पकड़ूंगा और उठा के कहाँ ले जाऊंगा? एक एक को अपने बीक में पकड़ूंगा और उठा के कहाँ ले जाऊंगा? अक्रॉस द हिल टू द अदर पॉन्ड। ऐसे अपने बीक में पकड़ूंगा एंड उठा के उड़ा के कहाँ ले जाऊंगा? अक्रॉस द हिल, पूरी हिल अक्रॉस करके टू द अदर पॉन्ड। नाउ ये तो किसने बोला उनको? स्टॉक ने बोला। नाउ द फिश दे वर अ लिटिल वरिड। अब फिश को जब स्टॉक ने बोला कि मैं तुमको अपने बीक में एक एक को उठा के ले जाऊंगा अक्रॉस द हिल टू द अदर पॉन्ड, तो फिश लोगों को थोड़ा सा टेंशन हुआ। दे न्यू दैट द स्टॉक कुड ईट देम। उनको पता था कि स्टॉक का तो वो फूड है और स्टॉक उनको पकड़ेगा और क्या करेगा? उनको खा जाएगा। बट दे वॉन्टेड टू सेव देयर लाइव्स। बट उनको डर लग गया कि पॉन्ड तो पूरा सूख जाएगा, रेन्स नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा? उनको अपनी सबकी लाइफ बचानी थी। Therefore they agreed. सारी फिश किसकी बातों में आ गई बेटा? स्टॉक की बातों में आ गई। अब now what happened? स्टॉक का आइडिया तो पूरी तरह से काम कर गया। He had planned कि मैं एक एक फिश को बीक में पकड़ूंगा और उनको ये कहूंगा कि मैं तो उनको ले जा रहा हूँ अक्रॉस द हिल टू द अदर पॉन्ड, मैं उनकी जान बचा रहा हूँ। बट उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, है ना? आन क्या चल रहा था उसके दिमाग में? आई होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना? सो दे न्यू दैट द स्टॉक कुड ईट देम। फिश को पता था कि स्टॉक तो उनको खा जाएगा, बट फिश थोड़ा डर गई थी। उनको लग रहा था कि नहीं, हमको अपनी जो है लाइफ बचानी है, इसलिए वो स्टॉक की बातों में आ गई। बट देयर वाज आल्सो विटी क्रैब हु लिव्ड इन द पॉन्ड एंड ही डिड नॉट ट्रस्ट द स्टॉक। बट बेटा, फिश के साथ साथ उस पॉन्ड में कौन रहता था? एक विटी क्रैब। विटी क्रैब जानते हो ना? विटी किसको बोलते हैं? क्लेवर क्रैब को। और जैसे जो फिश थी वो तो बहुत सीधी सादी थी, लेकिन हमारा जो क्रैब था, क्रैब कैसा था बेटा? विटी क्रैब, है ना? बहुत क्लेवर क्रैब था। और उसको पता था कि ये जो स्टॉक है ये ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सो अब जब फिश ने क्रैब को भी बताया होगा कि हम लोग तो जा रहे हैं, हमको तो स्टॉक एक एक करके उठा के अक्रॉस दी हिल टू द अदर पॉन्ड ले जाएगा। सो अब क्रैब को जब फिश ने बोला तो लेट्स सी व्हाट डिड द क्रैब रिप्लाई। क्रैब ने किससे बोला बेटा? फिश से बोला। लिसन फिश, द स्टॉक मे नॉट बी टेलिंग द ट्रुथ। किसने बोला? क्रैब ने बोला। क्रैब ने क्या बोला फिश को? कि फिश मेरी बात सुनो, ये जो स्टॉक है, जो ये तुमसे कह रहा है कि रेन्स नहीं होंगी, पॉन्ड पूरा ड्राई हो जाएगा, ही
मे नॉट बी टेलिंग द ट्रुथ, जरूरी नहीं है कि स्टॉक जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। ये किसने बोला? क्रैब ने बोला। किसको बोला? फिश को बोला कि जो स्टॉक बोल रहा है कि पूरा पॉन्ड ड्राई अप हो जाएगा, देयर विल बी नो रेन्स। तो जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक बोल रहा है वो ट्रुथी हो। स्टॉक झूठ भी तो बोल सकता है। लेट अस स्टे हियर एंड सी वेदर द पॉन्ड एक्चुअली स्टार्ट्स ड्राइंग अप। क्रैब ने बोला अभी तो रुको, हम देखते हैं कि सच में जो पॉन्ड है, ये बड़ा सा पॉन्ड, क्या ये सच में ड्राई होता भी है कि नहीं। क्रैब वॉज क्लेवर, ही न्यू दैट कि जो स्टॉक है उसके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं। वो स्टॉक को बिल्कुल भी नहीं ट्रस्ट करता था। इसलिए क्रैब ने फिश को समझाने की कोशिश की कि लिसन, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आपको स्टॉक बोल रहा है वो सही बोल रहा है। लेट्स वेट, हमको यहाँ पे रुकना चाहिए और हमको देखना चाहिए कि ये पॉन्ड क्या सच में ड्राई हो रहा है कि नहीं। Who said this? The witty crab. Witty का मतलब क्या होता है बेटा? Clever. And this the crab said to the fish. जिसको तो स्टॉक ने, फिश को तो आराम से स्टॉक ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ल्योर कर लिया था कि नहीं नहीं पॉन्ड ड्राई अप हो जाएगा, एंड इफ यू ट्रस्ट मी, मैं आपको लेके चलता हूँ अक्रॉस द हिल टू द अदर पॉन्ड। हाँ, एंड जो फिश थी वो तो सीधी सादी इनोसेंट थी, वो तो फुलिश बन गई थी स्टॉक की बातों में। बट जो क्रैब था वो ट्रस्ट नहीं करता था। किसको नहीं ट्रस्ट करता था बेटा? स्टॉक को। ही न्यू कि जो स्टॉक है वो सच नहीं बोल रहा है। एंड ही टोल्ड द फिश कि लेट्स वेट, है ना, चलो यहाँ पे अभी थोड़ा रुक के देखते हैं कि सच में क्या ये जो पॉन्ड है ये ड्राई हो रहा है कि नहीं। क्रैब ने फिश को समझाने की कोशिश की। नाउ turn the page to page 66, children. Fish, we do not wish to die. The stock is trying to help us. अब फिश से जब क्रैब ने बोला कि लेट अस वेट, हम थोड़ा रुक के देखते हैं कि सच में क्या ये पॉन्ड ड्राई हो रहा है कि नहीं, तब फिश ने क्या बोला? वी डू नॉट विश टू डाई। फिश ने क्रैब को बोला कि हम अभी मरना नहीं चाहते हैं। The stock is trying to help us. फिश ने बोला कि जो स्टॉक है वो तो हमारी मदद कर रहा है, वो तो हमको एक एक को पकड़ेगा और हम लोगों को उड़ा के ले जाएगा अक्रॉस द हिल टू द अदर पॉन्ड। एंड इफ यू डू नॉट विश टू कम, यू कैन स्टे हियर अलोन। फिश ने क्रैब को बोला है तुमको अगर नहीं आना तो तुम यहीं पे अकेले रहो, हम सब तो स्टॉक के साथ वन बाय वन वी विल गो टू द अदर पॉन्ड अक्रॉस द हिल। स्टॉक हमको कैरी करेगा और हमको एक एक करके अक्रॉस द हिल टू द अदर पॉइंट ले जाएगा। एंड अगर तुमको नहीं आना है तो तुम यहाँ पे अकेले रहो। फिश ने किसको बोला? क्रैब को बोला। उन्होंने बोला कि नहीं, स्टॉक तो हमारी हमारी हेल्प कर रहा है और वो हमको एक एक करके अक्रॉस द पॉन्ड, अक्रॉस द हिल टू द अदर पॉन्ड, हमको अक्रॉस द हिल, हमको दूसरे पॉन्ड में ले जा रहा है और तुमको नहीं आना है तो तुम मत आओ, तुम यहाँ पे रहो। फिश ने किससे बोला? क्रैब से बोला दैट वी डू नॉट विश टू डाई, हमको मरना नहीं है, इसीलिए तो हम क्रैब के साथ हम लोग जा रहे हैं और क्रैब तो हमारी हेल्प कर रहा है, वो एक एक हमको लेके जाएगा अक्रॉस द हिल टू द अदर पॉन्ड और तुमको नहीं आना है तो तुम मत आओ, तुम यहाँ पे अकेले रहो। फिश किसकी बातों में आ गई थी बेटा? हाँ, कनिंग स्टॉक की बातों में, कनिंग एंड क्रूअल स्टॉक की बातों में आ गई थी। बट विटी क्रैब ने उनको समझाने की कोशिश की कि नहीं, लेट्स वेट। बट द फिश दे डिड नॉट लिसन टू द क्रैब। दे सेड कि हम तो स्टॉक के साथ जा रहे हैं बिकॉज द स्टॉक ही इज हेल्पिंग अस, वो तो हमारी मदद कर रहा है, तुमको नहीं आना तो तुम मत आओ, यू स्टे हियर ऑल अलोन। Who said this? This the fish said to the crab. इसीलिए बेटा हमें
हमेशा कोई भी काम करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए. कोई हमको ल्योर करे, बहलाए फुसलाए, हमको उसकी बातों में नहीं आना चाहिए. Up, what happened? The next day onwards, the stock began to carry the fish across the mountain. अब अगले दिन से क्या हुआ? जो स्टॉक है वो एक एक फिश को अपनी बीक में पकड़ के फ्लाई करके अक्रॉस द हिल वो ले जाने लग गया. This started happening from the next day. अगले दिन से जो स्टॉक है उसने फिश को अपने बीक में से पकड़ा और उड़ा के ले जाने लगा. फाइन चिल्ड्रन. नाउ फिश तो स्टॉक की बातों में आ गई थी और फिश को स्टॉक एक एक को बीक में पकड़ के फ्लाई करके अक्रॉस द हिल ले जाने लगा. And this started happening from the next day. So children, that's all for today. आज के लिए स्टोरी इतनी ही. Okay? And you all please read this lesson again. हाँ, आपको जब भी फ्री टाइम मिले, you all please read this lesson so that it will be easier for you to understand and solve the exercises. Fine. So that's all for today, children. Thank you, children. Have a good day ahead.